کہ فرعون کون ہے؟ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے ہیں، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون، اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا، اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آیا، بیمار کبھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا، ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کر کے اٹھا، صبح نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح بتا دے۔ بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائی، پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے، جوان کون ہوگا؟ تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا۔ اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے، ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القاء کی کہ تہ خانے میں چلی جائیں۔ وہ تہ خانے میں گئی، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا کوئی ماں کیسے بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہیں، بہا دیتی ہیں، اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اس صندوق کے پیچھے۔ صندوق بہتے 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 ایک باغیچے کے کنارے لگا، وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا، اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا، اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں، دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے؟ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا فرعون، جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو۔ عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو۔ اب پرورش کی جب بات آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے، تو تایاں کو بلایا گیا۔ شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے، بہت ساری عورتیں آئی، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے۔ ان کی بہن وہیں کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ۔ وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی، اپنی ماں کو لے آئی، اور ان کی ماں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائی تو دودھ پینے لگ گئے۔ تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے اور یہ خاندان کے اندر رہے گی، شاہی خاندان میں محل میں رہے گی، اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی، اجرت بھی دی جائے گی۔
फिरौन के घर में परवरिश भी और उन्हीं की माँ से दूध भी पिलाना, फिर प्लस उसकी उजरत भी दिलाना, ये शान है रब्बे जुल जलाल की। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे परवरिश फरमाया, हक़ की हिफाजत करना ये मौला की शान है। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पाते रहे। जब आपकी उम्र 2 साल के करीब की हुई, फिरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते गोद में आए और फिरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह के मुंह पर तमाचा जड़ा है तो बेटा घर का, लेकिन फिरौन को पहली मर्तबा वो सन्नाटेदार जो थप्पड़ लगा, हो सकता है तारे नजर आ गए हों। वो घबरा गया, कहा कि ये बच्चा ऐसा कैसे मुझे मार सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। दस्तरखान से उठ गया और कहा अपनी बीवी से, बेगम मुझे लगता है यही वो बच्चा होगा, यही बच्चा होगा जो सल्तनत के हमारे खिलाफ जाएगा। फिर बेगम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है, और लाड़ प्यार में बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। फिरौन ने कहा नहीं, मुझे चेक करना है, ये बच्चा जानकार है, ये जानता है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पर इम्तिहान लिया है। फिरौन की बीवी बचाने पर लगी हुई थी। फिरौन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं ये कि बच्चे को समझ है या नहीं है। इम्तिहान के लिए बेगम ने कहा एक काम करो, एक बर्तन में आग के अंगारे दहकते हुए कोयले वो भी लाए जाएं और एक बर्तन में सफ़ेद फूल लाए जाएं। अगर बच्चा अक्लमंद होगा तो फूलों को पकड़ेगा, नहीं तो फिर ये लाल चीज़ की तरफ बच्चों का हाथ ज़्यादा जाता है, आग देखेगा। कहा ठीक है, ये आजमाइश की जाएगी। एक बर्तन में आग के लाल सुर्ख अंगारे कोयले लाए गए और एक बर्तन में फूल लाए गए, दोनों रखे गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या, हर नबी माँ के पेट से ही हर चीज़ को जानते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इल्म भी नवाजा है। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, 2 साल की उम्र है कि बच्चे इन दोनों में से कोई चीज़ उठा लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ फूलों के बर्तन की तरफ ही बढ़ने लगा। ये तो इम्तिहान था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसी वक्त नाजिल हुए और आपका हाथ पकड़ करके आग में डाला। आग में से एक कोयला मूसा अलैहिस्सलाम उठाए और अपने मुंह में रख लिए, जिसकी वजह से आपकी जुबान जल गई, हाथ में भी आग लगी। फिर फौरन हटाया गया। फिरौन को वो सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं, ये जानता नहीं है, जानता होता तो आग नहीं उठाता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को इस आग के कोयले के जुबान पर रखने की वजह से जिंदगी भर उसका असर रहा, जुबान में जिंदगी भर असर रहा। फिर जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम की, उसी घर में परवरिश पाते हुए। फिर आप वहाँ से निकले और आपकी माँ ने आपको सारी चीज़ें बता दी कि हम बनी इसराइल से हैं, नबियों का ख़ानदान है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर हम हैं, और फिरौन जालिम है और वो अपनी परस्तिश करवाता है, अपनी इबादत करवाता है, लिहाजा हम फिरौन के ख़ानदान से नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जवान होने के बाद इन तमाम सिचुएशन को समझ चुके थे, सारे हालात। एक बार ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से बाहर की तरफ जा रहे थे, 2 लोगों को लड़ते हुए देखा। एक बनी इसराइल का था, इनके ख़ानदान का था, एक फिरौन के ख़ानदान का था। तो इनके ख़ानदान का जो आदमी था वो पुकारा मूसा अलैहिस्सलाम, हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचा लो, मूसा मुझे बचा लो। मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा दोनों झगड़ रहे हैं। एक तो अपने ख़ानदान का था बनी इसराइल, वैसे भी बनी इसराइल पर उस वक्त बड़ा जुल्म किया था फिरौन ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मौका पाते ही, यानी वो फिरौनी था, एक घोंसा लगाया उसको, एक घोंसा उसको लगाया, वो ज़मीन पे गिरा और मर ही गया, ख़त्म ही हो। नबी का पंजा लगाया, नबी के हाथ से एक मार खाया और मर गया। ये एक घोंसा लगाया और उसका काम तमाम कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया, यानी मैंने तो इस दोनों के झगड़ों को छुड़ाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरे हाथ से ये मर गया। अल्लाह की बारगाह में आपने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ताला ने माफ़ भी फरमाया, आयतें नाजिल हुई। फिर चंद दिन के बाद ऐसा हुआ, फिर इनके ख़ानदान वाला बनी इसराइली एक बार फिर किसी से लड़ रहा था, फिर लड़ रहा था, दूसरा ही दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर आज उसने पुकारा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गलती तो तेरी ही है, कल भी तू ही लड़ रहा था, आज भी तू ही लड़ रहा है, यानी रोज़ तूने पेशा बना लिया लड़ने का। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपना पंजा लेकर इसी की तरफ आने लग गए। ये जो इसराइली था तो डर गया, उसको पता था कि कल क्या हुआ है, एक घोंसा खाने के बाद होता क्या है। तो चीखने लगा, अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिल अम्स, मूसा क्या तू मुझे भी वैसे ही कत्ल करना चाहता है जैसे कल तूने कत्ल किया था। ये कहते हुए वो झगड़ा छोड़कर भाग गया। अब भाग कर जाकर फिरौन के ख़ानदान वालों को, बल्कि फिरौन को सब बता दिया कि मूसा बनी इसराइल से हैं और एक फिरौनी को, एक तुम्हारे ख़ानदान वाले को कल मूसा ने कत्ल किया है। तो मामला बड़ा बिगड़ गया। फिरौन के दरबार में ये सब उसने चुगली किया। बताओ
वो कौन था? बनी इसराइल ख़ानदान से, मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का था। और फ़िरौन के यहाँ चुगली किया है इन्हीं की, मूसा अलैहिस्सलाम की चुगली किया उन्हीं के ख़ानदान का आदमी फ़िरौन के यहाँ जाकर बताया। फ़िरौन पूरी तैयारी करके कहा कि मूसा को पकड़ो, और मैं पहले से कहता आ रहा था कि वही बच्चा है, वही बच्चा है, और मेरा गुमान सही निकला। इस बुनियाद पर उसने अपनी बीवी को सज़ा देना शुरू किया। हज़रत आसिया, इस बुनियाद पर वह अजाब इस कदर दिया कि उनके हाथों पर मेख मारकर उन्हें सुलाता था, उनको बालों समेत छत से लटका दिया जाता था। बहुत शिद्दत की तकलीफ दी हज़रत आसिया को, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती, वो मूसा के खुदा पर ईमान रखती थी। तो फ़िरौन ने अपने जांबाजों को, अपने लड़ाकों को भेजा कि फिर मूसा को पकड़ो। वो सब निकले तो एक इनकी अच्छाई चाहने वाला, इनका खैर खा शहर से दौड़ता हुआ आया। वजा रजुल मिन अक़सल मदीनति यसआ, दौड़ता हुआ आया शहर से और कहा, अरे या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूक, फौज पीछे से आ रही है तुम्हें कत्ल करने के लिए, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, ये बस्ती छोड़ दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात सुन करके निकल पड़े। ये मिस्र की सरजमीन थी, छोड़ करके आप वहाँ से निकले। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, वहाँ से खौफ के आलम में निकले थे। मूसा अलैहिस्सलाम दूसरी बस्ती पर चले गए, एक ऐसी जगह पर गए, ये पूरा वाक़या तफसील से सूरह क़सस में मौजूद है। एक बस्ती पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा है कि एक कुएं पर भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी भीड़ है, पानी खींच रही है। उसमें दो लड़कियां दूर शर्माते खड़ी हैं, वो पानी में लेने के लिए भीड़ में नहीं जा पा रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम भीड़ को चीरते हुए आए और उन दो लड़कियों के लिए पानी आपने डोल से निकल, आप मजबूत थे, कवि थे, ताकतवर थे, पानी आपने निकाला और पानी निकालकर उन दोनों लड़कियों को दिया। तो वो जवान लड़कियां थीं, उन्होंने कहा कि चलो, हमारे बाप इस शहर के बड़े नेक और परहेजगार आदमी हैं, हम तुम्हें लेकर के चलती हैं और अपने बाप से तुम्हें उजरत दिलाएंगे। तुम देखने में बड़े अच्छे लगते हो, अजनबी हो, मुसाफिर हो, उजरत दिलाएंगे जो पानी तुमने हमें डोल से खींच कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बात पर चल पड़े। कहाँ? वो दोनों लड़कियां अपने घर ले आई। अपने घर ले आई तो उनके वालिद जो थे वो कोई आम इंसान नहीं, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी। तो ये दोनों नबी की बेटियां थीं। मूसा अलैहिस्सलाम आए, पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा अपना वाक़या हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के पास बयान किया। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, तुम एक जालिम कौम से नजात पाकर क्या आए हो, रहो हमारे यहाँ रहो, कोई हरज नहीं है। अब उजरत क्या दी जाएगी तुम्हें जो हमारी बेटियों को तुमने पानी खींच कर दिया? तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ालत इहदबनतैया हातैनी अला अन, क़ालत इहदाहुमा, उनकी बेटियों में से हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं इन्नी उरीदु अन उनकी हक़ा, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूँ। किस बात पर? वो उजरत के तौर पर निकाह भी कर दूंगा, और प्लस महर क्या रहेगा? महर में ये रहेगा कि मेरे बगीचा है, उस बगीचे में 8 साल तक तुम्हें रखवाली करनी होगी, 8 साल तक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। 8 साल की बजाय 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रहे, शादी भी हुई शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ, जिनका नाम तारीख़ में हज़रत सफूरा बताया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, वहीं रहने लगे। 10 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपनी बीवी को लेकर, अपने घर वालों यानी अपनी अहलिया को लेकर निकल पड़े वापस। फिर आप सफ़र पर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए अपनी बीवी को लेकर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब जाओ फ़िरौन के पास, उसको हिदायत की तलकीन करो, तबलीग करो, उससे कहो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करे। लेकिन जाने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और ट्रेनिंग से गुजारा। आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती थी, छड़ी, जो आपका आसा था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, इस लकड़ी को ज़मीन पर छोड़ो। आपने ज़मीन पर छोड़ दिया। क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ। कुरान कहता है जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उस लकड़ी को डाला, वो एक खौफनाक अज़दहा सांप बन गया। अज़दहा इतना ख़तरनाक कि लोग देखें तो हैबत तारी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। अल्लाह फरमाता है खुदहा वला तख़फ़, पकड़ लो उसको, डरो मत। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस सांप को पकड़ते हैं तो फिर से वो लकड़ी बन गया। ये मौजज़ा था मूसा अलैहिस्सलाम का कि लकड़ी को ज़मीन पर डालो तो सांप रेंगने वाला, और हाथ में ले लो तो फिर लकड़ी। दूसरा मौजज़ा था आपका कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, वदमुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सू, आप अपने हाथ को, मुट्ठी को अपने जेब में डालो। अदखिल यदका फी जैबिक, आप अपने जेब में अपनी मुट्ठी को डालो, हाथ को। और जब हाथ जेब में डालकर बाहर निकालते
तो पूरे हाथ में सूरज से ज़्यादा रोशनी चमकती थी। हाथ यूं करें तो बहुत तेज रोशनी कि रात के वक्त अगर आप हाथ निकालें तो पूरा उजाला हो जाए। ये दूसरा मौजिज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये दो मौजिज़े देकर अल्लाह ने भेजा फ़िरौन के पास, जाओ और उसको ईमान की दावत दो। अल्लाह ने फरमाया अब ये लेकर के चलो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में आए, फ़िरौन को भनक लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उसको कहते हैं देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, तुम जो लोगों की इबादत करवाते हो अपने लिए इसको ख़त्म करो और उस रब पर ईमान लाओ जिसने तुझे भी पैदा किया मुझे भी पैदा किया। फ़िरौन ने कहा मूसा तू मेरे घर में पला है, देखते नहीं मैं बड़ा रब हूँ सबका, मैं कब से पाल रहा हूँ, तुम ये कौन सी चीज़ लेकर के आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दावत जारी रखी तो फ़िरौन ने कहा तुम्हारे हक होने की क्या अलामत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ताला ने गैब से कुछ ताकत अता फरमाई, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। फ़िरौन ने कहा ऐसी तो ताकतें मेरे पास बहुत हैं। कहा ले आओ, तुम्हारी जितनी ताकतें जमा करो मेरे मुकाबले में सबको ले आओ। फ़िरौन ने अपने ज़माने के सारे जादूगरों को जमा किया, कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले, तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या दिखाना चाहते हो। तो छोटी छोटी रस्सियाँ लेकर के आए थे। कहा क्या है मूसा हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीज़ों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियाँ मैदान में डाली तो सब के सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियाँ थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया ऐ मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है, तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियाँ खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला नहीं करना। फ़िरौन जिनको मुकाबले में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम पर सारे ईमान लाए। फ़िरौन का गुस्सा और तेज़ हुआ, उसने कहा अब हम मार देते, लेकिन अल्लाह का अज़ाब फ़िरौनियों पर आया, कई तरह के अज़ाब आए। अल्लाह तबारक ताला ने आखिर में, मैं आखिरी की तरफ आता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपने ईमान वालों को लेकर निकल चलो मिस्र के किनारे तूरे सीना की तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी फ़ौज को लेकर, बीच में समंदर आता है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया अपना असा इस पर मारो। एक लकड़ी है, काम कितने करती है, क्या क्या काम है, सारे लोगों से मुकाबला भी इसी का काम है। अल्लाह के नबियों के हाथ से जो चीज़ लग जाती है उसकी अजमत ही कुछ और होती है। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पर आसा मारते हैं, 12 रास्ते जारी हो गए, सूखे रास्ते समंदर पर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान उम्मतियों को लेकर निकल पड़े। फ़िरौन अपने लश्करियों को लेकर मुकाबले के लिए आया था, उसने कहा मूसा के पीछे चलो, पकड़ो इनको किसी तरह। वो अपनी फ़ौज को समंदर में वही रास्तों में डाला। अल्लाह फरमाता है हमने समंदर को जैसा था वैसे मिला दिया। समंदर में वो हमेशा के लिए अपनी पूरी फ़ौज समेत गर्क हो गया, हमेशा के लिए मर गया। किस चीज़ से मारा अल्लाह ने उसको? पानी से मारा, जबकि पानी की कोई हैसियत नहीं समझी जाती, बहुत हल्की चीज़, लेकिन अल्लाह जब उसे जोश देता है तो यही पानी कभी सुनामी बन जाता है, यही पानी कभी फ़िरौन को हिलाक करता है। अल्लाह ताला छोटी ताकतों को भी जब चाहे बड़ी कुव्वत अता करता है। मेरे अजीज़ मूसा अलैहिस्सलाम इस फ़िरौन से निजात पाकर अपनी पूरी कौम को लेकर मैदान तीह के करीब आए। फिर उसके बाद बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, इनमें से जो चीज़ें हमें सीखनी है वो यही है, फ़िरौन की ज़िंदगी जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए रांदे बारगाह किया, बल्कि कई सालों के बाद समंदर ने भी उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंका।